Hello everyone. Sorry, there was an internet issue. Please join me. Samia and Sarah and Miss Gul, can you please send me request so that I can add you? There is an option that lets you send a request. Okay. Assalamu alaikum. Hi. Walaikum assalam, Samia. How are you? I'm fine. How are you? Good, Alhamdulillah. So sorry for the little glitch over there. No issue, no issue. We all can understand. Yeah. So, thank you for joining, Samia. Most welcome. Most welcome. And Just a thanks to you and obviously Muhammad Ali Jinnah University for inviting me for this session. Thank you. no, it's basically an honor for us to have you. So, just a bit introduction of Samia. I'm just gonna give Samia Hamid is a lecturer at IOBM, and she's a lecturer for entrepreneurship, and she is also the an entrepreneur herself. She has several startups. So over to you, Miss Samia. I'm gonna let you do the introduction yourself. So Okay, tell us a thank you bit so about much. yourself. Yeah, sure. Thank you so much, Asma. It's Samia Hamid, and as Asma already introduced me, that I am a senior lecturer Hmm. in IOBM in Karachi in entrepreneurship department. And Alhamdulillah, I have into teaching for the last 12 years, or for the last 8 to 9 years, I'm teaching entrepreneurship. And thanks to my Okay, very teachers, nice. because I always give credit to my teachers, especially that one Mm. teacher, Mr. Rehan Shakur, who taught me this entrepreneurship Okay. course when I was back in like in my graduation. And because Yeah, just because nice. of him, I think I understand this entrepreneurship word and True. the true feeling of it the way it is. Because Hmm. teaching entrepreneurship from the books only, I don't think so, okay, it will give you the true essence and true feeling of becoming an entrepreneur. But yes, like Agree. practical approach के साथ उसको पढ़ाया जाए, practically implement Mm-hmm. करवाया जाए, वो जो tough time Mm-hmm. दिया गया, I think that was great, and thanks to my teachers. And other than that, I'm managing few of my ventures. Okay. Some are based on social entrepreneurship, and some are Mm-hmm. on the like conventional business models. My social platforms, one of my social platform is with the name of the Queenspreneur. Actually, it's Mm. like a platform I created for the women.
who have some skills, but they are not into they don't have like much exposure to the real world, like घर में रहती हैं या फिर कम अगर उनकी फॉर्मल एजुकेशन कम है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो स्किल्ड होती अच्छा। हैं, कोई ना कोई स्किल्स होती हैं, तो उनको हेल्प आउट किया जाए, ओके। उनके लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया था। एंड द मेन रीजन, द मेन पर्पस, मैंने जो इसको स्टार्ट किया था उसको मैं ज़रूर हाईलाइट करती हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि ये कोई लाइक सिर्फ ऐसे ही नहीं कि मेरे माइंड में आया कि मैं बीइंग अ फीमेल एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दूँ। Actually, I am into trainings, and I am advisory board member, and train people and women in NGOs as well. So वहाँ पर मेरे पास कुछ cases आए थे काउंसलिंग के, जो डिवोर्स्ड और खुला जिनकी हो जाती है, या जो सिंगल ओके। पेरेंट होती हैं फीमेल्स। ठीक। तो वहाँ से मुझे ठीक। ये आइडिया आया कि एक्चुअली ये इस बात से इट्स अ बिटर ट्रूथ कि हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते ऐसी फीमेल्स को अपनी सोसाइटी में, हाँ जी। which is actually it's a separate debate कि किसकी मिस्टेक होती है इन सब चीज़ों में या नहीं होती, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि बीइंग एन इंडिविजुअल, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम उनको किस तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं। और वहीं से मेरे अंदर ये मुझे एक आइडिया आया कि इनके लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए। तो इनिशियली स्टार्ट ऐसे हुआ था, लेकिन हर तरह की फीमेल्स को मैं वेलकम करती हूँ, और इसमें ऑनलाइन सेशंस होते हैं, 1-to-1 मेंटोरिंग होती है, प्रॉपरली आपके जो भी आपका बिजनेस होता है उससे रिलेटेड, उससे उसकी ब्रांडिंग से रिलेटेड, उसकी सारी चीज़ों से रिलेटेड। अच्छा। एंड द अदर प्लेटफॉर्म इज विद द नेम ऑफ ताल्लुक, जो मैंने लास्ट ओके। 1.5 ईयर्स, आई थिंक 1 ईयर ऑलमोस्ट, मैंने इसको स्टार्ट किया था। और उसका रीज़न भी यही था कि इट वाज नॉट एट ऑल प्लान्ड, बट मेरे माइंड में क्यूरियोसिटी थी, मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी, और वो क्यूरियोसिटी उस वक्त से थी जब मैं स्टूडेंट थी ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में। और जब भी गाड़ी सिग्नल पे रुकती थी और मैं ट्रांसजेंडर्स को देखती थी, तो मेरे माइंड में एक एक क्वेश्चन आता था कि क्या ट्रांसजेंडर सिर्फ यही होते हैं जो मुझे नजर आते हैं, यही इनका हुलिया होता है, इसी तरीके से ड्रेसअप करते हैं, ये किस तरह से सोचते होंगे, ये क्यों नहीं अपने घर में रहते, बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस। तो ऑब्वियसली जब एक एज के साथ आपके अंदर मैच्योरनेस आती है, तो मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी थी। तो मैं एक्चुअली सिर्फ अपने एंड पे इसको रिसर्च करना चाहती थी, उनसे मिलना चाहती थी। फिर मैंने जब ऑब्वियसली मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली और मैंने देखा, तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे अपने शहर कराची के अंदर जो है ट्रांसजेंडर्स ही हैं जिन्होंने एनजीओ जो है वो स्टार्ट की हुई हैं, और वो अपनी सही। कम्युनिटी के लिए बहुत काम कर रही हैं। तो सही। वहाँ से एक्चुअली मुझे एक मोटिवेशन मिली, और फिर मैंने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। इस प्लेटफॉर्म पे ट्रांसजेंडर्स के हवाले से मैं काम करती हूँ, उनसे जाके पर्सनली मिलती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, उनको स्किल्स सिखाना, और फिर उनको ऑब्वियसली बिजनेस में इन्वॉल्व करना, ना कि ये कि उनको सिर्फ और सिर्फ जो है वो जॉब की तरफ जो है वो उनकी इंक्लिनेशन बिल्ड की जाए, बल्कि बिजनेस की तरफ भी हो सकती है। इसके अलावा अच्छा। इसमें एसिड सर्वाइवर पीपल हैं जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में होते हैं। और अगेन मेरे अंदर बड़ी मतलब मुझे एक चीज़ हमेशा से क्लिक करती रही, हमेशा से मुझे एक चीज़ मैं सोचती थी कि ये रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में चले जाते हैं और जब इनकी ट्रीटमेंट हो जाती है, और जब ये फिर बाहर आते हैं, तो क्या गारंटी है कि दोबारा से ये ड्रग एडिक्ट नहीं बनेंगे। ट्रू। तो आई क्या एग्री। ऐसा किया जाए। तो सही। फिर मैंने एक दो जो हमारी ही ऑब्वियसली सिटी के अंदर कुछ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है, मैंने सर्च किया। एंड इसमें मेरी डिस्कशन एक ऑब्वियसली मैं उनका नाम जरूर लूंगी, मिस्टर सरमद से हुई, जो डिफरेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के साथ काम करते रहे हैं, और अभी भी माशाल्लाह एक रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर हैं, काम कर रहे हैं एज अ थेरेपिस्ट। सो मैंने उनसे ओके। डिस्कशन की, तो उन्होंने मुझे वेलकम भी किया, और अभी इंशाल्लाह जहाँ पर वो है वहाँ पर भी मैं कुछ ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, क्योंकि आई थिंक मेरी बात से आप भी थोड़ा सा अग्री करेंगे, और जो देखने वाले हैं, कि जब हम ऐसे जी। लोगों के लिए काम करते हैं जिनके साथ हम यूज टू नहीं हैं सिंस फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, इनके साथ उठने बैठने के, इनके साथ बात करने के, तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ा पहले, कि मुझे इनसे कैसे बात सही। करनी है, मुझे इनसे इनको कैसे ट्रेन करना है, क्या करना है। तो ये एक्चुअली इस तरह से स्टार्ट हुआ। और थर्ड कैटेगरी इसमें जो मैंने ऐड की हुई है वो एसिड सर्वाइवर वुमेन की है,
अगेन मेरे पास कुछ हम्म। ऐसे केसेस आए हुए अच्छा। थे कि जो एग्जैक्टली जिनको ऑब्वियसली एसिड सर्वाइवर जब वुमेन होती हैं तो उनका जो फेस होता है मेजोरिटीज का तो वो अफेक्टेड होता है, हम्म। जिसकी वजह से उनकी हम्म। एक्सेप्टेंस लेवल सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती और बहुत सारे और इश्यूज होते हैं जो वो फेस करती है। फिर इसमें एक हम्म। और कैटेगरी है जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, दो कि वो शायद चल नहीं सकते, शायद सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, या हमारी तरह नहीं होते, लेकिन यस उनके अंदर स्किल्स होती हैं और बहुत हम्म। अच्छी उनकी जो है वो स्किल्स होती हैं, तो उनको क्यों ना बिजनेस एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज में कन्वर्ट किया जाए। और इसमें जो हम्म। एक और कैटेगरी है, फिफ्थ कैटेगरी, वो ओल्ड एज होम है। अगेन मैं कुछ ओल्ड एज होम्स के साथ एज अ वॉलंटियर काम कर रही हूँ। वहां पर भी मैंने अच्छा। चीजें नोट की कि जो ओल्ड एज होम में लोग होते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वो किसी ना किसी के पेरेंट्स होते हैं। और वहां पर जब मैंने कुछ लोगों से बात की तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये माशाल्लाह बहुत कुछ एजुकेटेड भी होते हैं उसमें से, जिन्होंने अपने टाइम पे बहुत हम्म। अच्छा काम किया होता है। तो इनके लिए भी कोई ना कोई चीज़ प्लान की जाए। तो ताल्लुक का प्लेटफॉर्म बेसिकली फिर इस तरीके से जो है वो मैंने क्रिएट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा वेलकम करती हूँ, वेरी कोई भी एज नाइस। अ वॉलंटियर मेरे साथ काम करना चाहे तो यू पीपल आर मोर देन वेलकम, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो मेरा एक्चुअली सामिया, मैं सोशल जी। सही, तो सामिया ये आइडिया आपको, ये शुरू से आपका इंटरेस्ट, ये सोशल सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आपका शुरू से इंटरेस्ट था, या ये किस तरह से आपके अंदर डेवलप हुआ कि एंटरप्रेन्योरशिप में आप कह रही हैं कि आपके टीचर ने आपको बहुत मोटिवेट किया, हम्म। बट देन यू मूव्ड इनटू सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, हम्म। तो हाउ डिड दिस जर्नी स्टार्ट? ओके, आई थिंक कि जो सोशल जो एंटरप्रेन्योरशिप की कन्वेंशनल मॉडल होता है, एंटरप्रेन्योरशिप का जो प्रॉफिटेबल मॉडल होता है, मैं अगर उसकी बात हम्म। करूं तो स्टार्ट मैंने उसी से किया था, अपने बिजनेस से। ये मैंने अभी दो सोशल प्लेटफॉर्म्स का बताया है, दो मेरे जो है वो ट्रेनिंग से रिलेटेड, और एक मेरा अपना ब्रांड है जिसको मैं रन कर रही हूँ। सो वो भी है, हम्म। लेकिन सोशल अच्छा। का जो है वो जो मेरी इंक्लिनेशन थी टुवर्ड्स दी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप वो उसी टाइम से थी जब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा था। बिकॉज मेरी ऑब्वियसली आई एम फ्रॉम आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी। तो उस यूनिवर्सिटी हम्म। के अंदर जो है हर कोर्स के अंदर हर सेमेस्टर में कोई ना कोई सोशल वर्क, कोई सीएसआर प्रोजेक्ट होता था। तो वहां से ये चीज इतनी ज्यादा बिल्ड इन हो गई थी, इतना स्ट्रांगली। और जब एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि सर रेहान शकूर ने मुझे एक कोर्स पढ़ाया था इन दैट हम्म। यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने वहां पर भी हम्म। चीज बताया था नेसेसरी कि आप टोटली जो है वो कोई आपको बहुत सारे पैसे चाहिए या आपको सिर्फ डोनेशंस ही कलेक्ट करनी पड़ेंगी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए, बल्कि आप अपने एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस मॉडल के अंदर भी सोशल वाली चीज को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वहां से ये अच्छा। आइडिया मेरे माइंड में था, तो जो है इस तरीके से ये इनिशिएटिव जो है फिर मैंने लिया। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, दैट्स वेरी motivating. और अच्छा, if anyone from the audience has any question, so they can also ask. हम questions भी साथ देख रहे हैं, comments भी देख रहे हैं। और अब आपका जो, आई रिमेम्बर आपका कुछ और, जैसे आपने कहा प्रॉफिटेबल ऑन, आपके वेंचर्स भी थे, तो हम्म। उनके बारे में थोड़ा बताएं, वो आपके क्या हैं? या श्योर। एक मेरा प्लेटफॉर्म है विद द नेम ऑफ लॉरेल्स क्लब, जो मेरा और मेरे पार्टनर हैमर अलीम का है। और उसमें हम्म। बेसिकली हम ट्रेनिंग्स हमने स्टार्ट इससे किया था कि हम जो स्किल्स यूनिवर्सिटी स्कूल्स या कॉलेजेस में नहीं वो मिसिंग होती हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। तो अच्छा। उसको जो है हम एज अ ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जो है क्रिएट किया था, और उसको एज अ ट्रेनिंग उसमें हम कंडक्ट करते हैं। तो हम्म। वो हर तरह की लाइक पब्लिक के लिए है, चाहे वो स्कूल के टीचर्स हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों। तो उसमें कुछ हमारी अपनी ट्रेनिंग्स डिज़ाइन की हुई हैं, और इसके अलावा कुछ हम टेलर्ड मेड जो है वो कस्टमाइज ट्रेनिंग्स भी डिज़ाइन करते हैं। और हम्म। उसमें एक्चुअली ज़्यादातर इंडिविजुअली या फिर स्मॉल ग्रुप्स के अंदर हम लोगों को केटर करते हैं व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग्स। इसके अलावा एक ओके। और जो प्लेटफॉर्म है वो भी अगेन मेरे पार्टनर का ही इनिशिएटिव है विद द नेम ऑफ फैशरॉन। और वो हम्म। एक वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर द पीपल या फॉर द फैशन डिजाइनर्स जो फैशन ग्रेजुएट्स होते हैं, टेक्सटाइल ग्रेजुएट्स होते हैं, या वो जिनको एक अच्छा एक सेंस होता है फैशन का, और वो अपना कोई फैशन ब्रांड स्टार्ट करते हैं, चाहे कपड़ों का हो, चाहे ज्वेलरी का हो, चाहे वो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड हो या फुटवेयर हो। और हम्म। उनको उनकी ओवरऑल मतलब फ्रॉम ए टू जी सारी उनकी मेंटोरिंग की जाती है।
उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी को चेक किया जाता है, उनको सारी चीज़ें मतलब थ्रू आउट गाइड किया जाता है, और फिर वेरी ऑब्वियसली इसके नाइस। साथ सॉल्यूशंस उनको प्रोवाइड किए जाते हैं कि किस तरीके से आप अपना पेज बनाते हैं, उसमें डिजिटल मार्केटिंग वाला जो है एस्पेक्ट भी है। फिर जो जिनका इनिशिएटिव है ये एक्चुअली जीशान का, तो वो जो है वेबसाइट के हवाले से और वो जो टेक्निकल साइड है, आईटी की जो साइड है उसमें टेक्निकल साइड वो उसको देख रहे होते हैं। मैं उसमें एज अ लाइक फैशन एल्केमिस्ट हूँ, लाइक फैशन ओके, कंसल्टेंट, तो उसमें मैं वेरी ये नाइस। अपनी सर्विसेज दे रही होती हूँ। ये एक्चुअली मेन दो हैं, और तीसरा जो है एक्चुअली अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा पेंडिंग में है, उसको मैं थोड़ा बता देती हूँ कि वो मैं स्पेशली यूथ के लिए स्टार्ट कर रही हूँ। यूथ के लिए मैंने उसको प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया था, जो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की हमारी यूथ है, और वो एंटरप्रेन्योर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, तो उसमें मैंने अच्छा, डिफरेंट डोमेन्स, उसका बेसिकली नाम है एंटरप्रेन्योर स्क्वाड, और ओके, उसमें डिफरेंट स्क्वाड्स होंगे, लाइक उसमें जो फैशन से रिलेटेड हैं वो फैशनप्रेन्योर्स होंगे, जो एजुकेशन वेरी में नाइस। हैं वो एजुप्रेन्योर्स होंगे, जो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर मेनली काम करते हैं तो वो ऑब्वियसली ग्रीनप्रेन्योर्स होते हैं, तो या फूड से रिलेटेड है तो फूडप्रेन्योर्स। तो उसमें इस तरह से थोड़ा सा है कि उसमें हर ओके, एक स्क्वाड लीडर होगा, और फिर उस स्क्वाड के लीडर जो है वो अपना एक स्क्वाड डेवलप करेगा डिफरेंट सिटीज के हाँ, अंदर, और वहाँ पर वो इंटरेस्टिंग। एक्टिविटीज कर सकते हैं, वहाँ पर वो इवेंट्स कर सकते हैं, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज फिर इंशाल्लाह उनके लिए होंगी। Okay, very nice. We also have two other guests, हम्म, Miss Gul and Miss Sarah Ahmed. So I'm also trying to get them on board. Uh, so I just sorry, please give me a few minutes. श्योर श्योर। So mm. Acha, we have one also question from the audience. They're saying, "Can please explain the opportunities for girls in COVID-19?" ओके, So yeah, this is a question for you, Samir. ओ या श्योर। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ कि सिर्फ Mhm. स्पेसिफिकली मैं कोविड-19 के ऊपर हाईलाइट करती हूँ, लेकिन पहले एक चीज़ बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। एज आई ऑलरेडी कंडक्टेड वन सेशन इन योर यूनिवर्सिटी प्रीवियसली लास्ट ईयर, और जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ या मेरे अपने जो कोर्सेज भी होते हैं प्राइवेटली जो मैं दे रही होती हूँ, तो उसमें एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई योर स्किल्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ Mhm. ऑल आइडेंटिफाई योर स्किल्स, identify your current resources, which is very important because अपनी resources को, अपनी skills को identify किए बगैर आप किसी से भी fascinate होके business शुरू मत कीजिएगा। कोई एक जज्बाती चीज नहीं अच्छा, होती, कोई जज्बाती फैसला नहीं होता बिजनेस करना, ठीक है। और उसका रीजन ये है कि फॉर एग्जांपल समवन इज डूइंग लाइक फूड बिजनेस, ठीक है, आई गेट इंस्पायर्ड सही, फ्रॉम हिम और हर, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि मेरे पास भी वो स्किल्स हो, मेरे पास भी वो कॉम्पिटेंसीज हो, मुझे इंटरेस्ट हो उसका, ठीक है। सो सही, फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल। आइडेंटिफाई योर स्किल्स, बड़े पेशेंटली आप जो है इसको आइडेंटिफाई करें, एक पेंसिल एक पेपर लें और उस पे 3-4 टाइप्स के जो रिसोर्सेज हैं पहले उसको आइडेंटिफाई करें, विच इज ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल हम्म, रिसोर्सेज, मटीरियलिस्टिक रिसोर्सेज एंड इंटेलेक्चुअल। ठीक है, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं जो आपकी स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज होती हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली हम्म, कहीं ना कहीं आपकी स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज का जो कनेक्शन है वो आपका इंटरेस्ट से भी जो है वो कनेक्टेड होती है, आप उसको हाईलाइट कर रही होती है। तो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपके स्पेसिफिकली क्वेश्चन की तरफ आती हूँ कि कीपिंग इन माइंड द कोविड-19 और दिस पेंडेमिक, अगेन हम्म, इसका कनेक्शन इसलिए मैंने पहले ही बात की कि मैं कोई ऐसा बिजनेस खुद से नहीं बता सकती कि आप ये करें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी क्या स्किल्स हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली या इंडिविजुअली आप मुझसे पूछोगे तो पहले मैं आपसे बात करूंगी और मुझे पहले पता चल जाए कि व्हाट actually your competencies are, your skills are, and your interests are all about, so then I will guide you accordingly
कि आपको ये ऑप्शंस हैं, इसमें से आप कोई एक ऑप्शन पे जो है वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो एज एन एंटरप्रेन्योर, और देन वी विल सी के उसको किस तरीके से आप हैंडल करते हो। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट दी हैंडलिंग एज वेल। जो बिजनेस की हैंडलिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स ये होता है कि आई एम लाइक एकेडमिशियन, आई एम अ टीचर, as I said कि since for the last 12 years I am teaching, लेकिन it's not at all necessary कि मैं अगर कोई अपना स्कूल या कोई इंस्टीट्यूट ओपन कर लेती हूँ तो मैं उसको चला सकती हूँ। ठीक है, सही। बीइंग अ टीचर एज एन एम्प्लॉय आप कोई सर्विसेज कोई अपनी आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, जो स्किल्स होती हैं, और आपके बिजनेस के अंदर जो हैंडलिंग होती है, ये दो थोड़ा सा ये चीजों को क्लियरली आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और फिर आप उसको जो है उससे रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कीपिंग इन माइंड, अगर मैं पेंडेमिक की बात करूं एंड बीइंग अ फीमेल, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं हो, आपका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, और वैसे भी हम बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे पेंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से, सो उसमें ट्रू। आप ऐसी चीज़ से स्टार्ट करें। अगर आप माशाल्लाह एजुकेटेड हैं तो कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी सर्विसेज जो इस लॉकडाउन के अंदर ऑनलाइन आप दे सकते हो दूसरे लोगों को, ताकि एक तो ऑब्वियसली उनके लिए भी बेनिफिशियल हो और अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए भी अच्छा हो। दूसरी चीज ये है कि फूड का बिजनेस, यस फूड का बिजनेस हमेशा से एक एवरग्रीन बिजनेस रहा है, इसको इस बात से मैं डिनाई नहीं करती, अग्री करती हूँ। लेकिन डिपेंड करता है कि आप जब कोई भी ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में देयर आर सो मेनी कंपेटिटर्स, सो जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर आउट कि भाई आपका बिजनेस, आपका जो फूड आइटम है वो बेसिकली क्या है आपके मेन्यू में। ठीक है, और वो कितना जो है वो लाइक उसकी डिमांड है, या फिर वो आपके कंपैटिटर के पास नहीं है, या आपकी जो है वो उसमें यूएसपी क्या है, आपका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, विच मेक्स यू यूनिक फ्रॉम योर कंपैटिटर। और आपकी भी जो है अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपकी सेल्स हो सकती है, जिससे एट द एंड आपने प्रॉफिट अर्न करना है, कुछ ऑब्वियसली रेवेन्यूज होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दैट इज वाई वर्किंग, प्रायर वर्किंग, आई थिंक जो होमवर्क होता है आपका बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वो रिसर्च बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें। तो यस चैलेंजेस आते हैं, हर किसी को आते हैं, मैं मुझे अभी तक आ रहे होते हैं चैलेंजेस, लेकिन कोई ऐसा बहुत ज्यादा बड़ा मिस लाइक अनप्लेजेंट चैलेंज ना हो जिसको आप बेयर ना कर सकें। तो इसलिए थोड़ा सा वर्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। Very nice. Thank you so much, Samya. Uh, I'm going to try to add Miss take on board the our next guest, Miss Gul. So just give me 1 minute, please. Okay, so we're connecting with Miss Gul, our next guest. Okay. Yeah, I think there is some internet connection issue from her side. So in the meantime, let's add Sara Ahmad Ali. Okay. Hi, Sarah. Walaikum assalam.
So Sarah is it's basically a very interesting personality. She is a Maju student. Okay, she's currently our student, and she started her own venture that I think was an outcome of a class project. So Sarah, मैं Yes, आप ma'am. over to you. I'll let you do the talking. ठीक है, तो अपने बारे में बताएं, अपने आपके क्या ventures हैं? Okay, ma'am. Assalamualaikum, everyone. This is me, Sarah Ahmed Ali. I am currently doing BBA from Muhammad Ali Jinnah University. My domain is marketing, and I am in my final semester. And as Ma'am Asma was talking about that project, that was one of my own creation, and I just मेड हर्बल सोप्स एंड हर्बल ऑयल्स और उस वक्त जो मेरा क्लास प्रोजेक्ट था तो मैं बहुत एक्साइटेड थी फर्स्ट टाइम मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करा था बहुत डरी भी थी कि कैसे होगा क्या होगा बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा रहा था इवन उस वक्त जो है मैंने पैकेजिंग भी उसकी खुद करी थी एंड Very अपार्ट nice. फ्रॉम दैट उसी वक्त उस साथ जो है ओरी फ्लेम भी ज्वाइन करा था और यहाँ पे मैं ओरीफ्लेम की भी जो एक अपॉर्चुनिटी है वो भी डिस्कस करूंगी कि बेसिकली क्या है आप लोग कैसे कर सकते हैं और सबसे बढ़कर जो लड़कियों को मसला होता है कि बाहर जाके कैसे काम करें और हालात इस हम्म तरह के होते हैं तो वो घर बैठे अपना कैसे स्टार्ट कर सकती हैं सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ओरीफ्लेम एक जॉब है ओरीफ्लेम बेसिकली कोई जॉब नहीं है एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और लॉन्ग टर्म बिजनेस हम्म अपॉर्चुनिटी है और इसमें कोई वो नहीं होता कि आप सिर्फ गर्ल्स ज्वाइन करें बॉयज भी ज्वाइन कर सकते हैं सो मैं अब उसको थोड़ा डिस्क्राइब करती हूँ फिर उसके बाद मैं अपनी स्टोरी भी बताऊंगी कि मैंने किस तरह से ज्वाइन करा और क्या अप्स एंड डाउन्स आए और किस तरह से मैं इस लेवल पे पहुंची हूँ जो मैं मैनेजर लेवल पे हूँ अभी अल्हम्दुलिल्लाह सो हम्म बेसिकली Right. ओरीफ्लेम इज लाइक स्वीडन बेस्ड कंपनी जो पाकिस्तान में है और ऑल ओवर 65 कंट्रीज में है सो बेसिकली ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि इसको ज्वाइन करने के बाद आप जो है इसके प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं उस पे आपको प्रॉफिट भी मिलता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप इसमें और लोग ऐड करवाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो उस बेसिस पे आपको जो है कमीशन मिलता है एंड मैं ये बात कहना चाहूँगी कि आप हम्म खुद से जितनी मेहनत करते हैं उसका आपको इसमें जो है फल मिलता है ये कोई यहाँ पे फिक्स आपका कमीशन नहीं होता या हम्म फिक्स आपका प्रॉफिट नहीं होता जितनी ज़्यादा आप एफर्ट्स डालते हैं और जितनी ज़्यादा आप लोग मेहनत करते हैं उस बेसिस पे जो आपको है इसका जो है रिजल्ट मिलता है और आप आगे से आगे बढ़ते हैं और अब मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगी कि मैंने किस तरह से ज्वाइन करा तो और भी लोग मोटिवेट हो पाए कि बिल्कुल, वो लोग भी ज्वाइन करना क्योंकि चाहें तो इसके साथ थोड़ी परसेप्शन है ऐसी कि ये is a perception like that. मैम थोड़ा लोगों को ये लगता है कि नहीं कर पाएंगे और हम्म मुश्किल होता है और इस तरह से तो तो आप जरा बेसिकली मैंने जब स्टार्ट किया था उस वक्त जो है मेरी जो है समर ब्रेक चल रही थी यूनिवर्सिटी की और मैं हम्म फ्री थी तो मैंने कहा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ और अब मैं ज्वाइन करके देखती हूँ फिर जब मैंने ज्वाइन किया और मैंने स्टार्ट करा तो मैं अपना अगर बताऊँ तो मुझे लगा यार ये तो मैं बहुत अच्छे से कर हम्म सकती हूँ उसका एक रीज़न ये करेक्ट भी है कि वो सारी चीज़ें मैं पढ़ भी रही थी और मैं मार्केटिंग हम्म डोमेन से हूँ और फिर मैंने देखा कि मैं इसको बहुत अच्छे से कर सकती हूँ तो फिर मैंने हम्म स्टार्ट लिया एंड ऑनेस्टली मैं अपनी जब अपनी टीम को भी अपनी स्टोरी बताती हूँ जो मैंने गलती करी थी स्टार्टिंग की 5 मंथ्स मैंने बहुत कैजुअली लिया कि मैं सिर्फ अपने टारगेट्स कंप्लीट करती थी और बस पढ़ाई के साथ साथ मैं कर रही थी फिर उसके बाद जब मैंने टीम बनाना स्टार्ट करी मैंने इसमें और लोगों को इनवाइट करना स्टार्ट करा उनको मैंने इसके अंदर इंक्लूड करना स्टार्ट करा तो फिर मैंने देखा कि नहीं यार इसमें बहुत कुछ मैं और लोगों को मोटिवेट कर सकती हूँ और लोगों को ज्वाइन करवा सकती हूँ अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 100+ की टीम है और इसमें मेरी पूरी वेरी टीम जो है नाइस मुझसे इंस्पायर होती है अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो जिनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता उनको काम नहीं करने दिया जाता वो काम कर रही हैं वो अपने आप को कुछ बनाना चाह रही हैं कुछ ऐसी हम्म भी हैं वो जिनकी डिवोर्स हो गई है या जिन्होंने खुला लिया हुआ है वो लोग भी हैं और वो अपने आप हम्म को कुछ करना चाहती हैं अपने पैरों पे खड़ा होने हम्म होना चाहती हैं और वही हमारी सोसाइटी में जो गैप है
कि नहीं औरत बाहर निकल के काम ना करे, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप घर बैठे बैठे अपना कर सकते हैं। आपको सिर्फ मोबाइल की जरूरत पड़ती है इसके अंदर। और मैं उन लोगों को इतना मोटिवेट करती हूँ, वो मुझे ऐसा इंस्पिरेशन लेती हैं कि नहीं, जब ये कर सकती है इतनी छोटी सी उम्र में, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। और मुझे इतना प्राउड फील होता है उन लोगों को कि जब मैं उन लोगों की हेल्प करती हूँ या उन लोगों को इस तरह से बताती हूँ कि नहीं आप लोग भी कर सकते हैं। तो इस बारे में ये बात कहना चाहूंगी कि आप लोग, कोई भी कर सकता है अगर आप लोग खुद अपने ऊपर बिलीव रखें कि हम कर सकते हैं। तो दुनिया में कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, सबसे पहले आप लोग को अपने ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं। Okay, Samia, sorry, Sarah, that's very inspiring what you have mentioned. और अपना आपका जो हर्बल का है, क्या वो भी अभी चल रहा है आपका, साथ ही काम कर रही हैं यस या? मैम, वो जो है मेरा जो है अभी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी है। उसको ही मैंने एज अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी रखा है। और उसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ मैं दोनों चीज़ों को मैनेज भी कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं होता कि आप लोग को कोई फोर्स किया जाए कि इस वक्त काम करना है या इस वक्त काम नहीं करना। टोटली आपके ऊपर होता है। तो हाउस वाइफ भी इसको ज्वाइन कर सकती हैं, बिकॉज बहुत सारी हाउसवाइफ भी हैं जो इसमें बच्चों के साथ संभाल लेती हैं और कर रही होती हैं, मेरी टीम में भी हैं। तो ये है। और बाकी जो हर्बल का आप कह रही हैं वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आप भी देखेंगी। वो अबाउट टू लॉन्च है इन जनवरी इंशाल्लाह ताला। तो वो भी आप देखेंगी बहुत जल्दी। और किसी के क्वेश्चंस हैं तो मैं उनका भी आंसर देना चाहूंगी। आपको माशाल्लाह बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल रही है और बहुत लोग आपको जो है ना, they're saying, मतलब I think you have a lot of friends over here जो आपको यस या मैम, मैं बहुत टीम आपसे से ज्वाइन। इंस्पायर हो रहे हैं। तो thank you so much, Sara. We're a bit यस, short on time, तो मैं I want our third guest to also join us. तो मैं थैंक यू मैम। thank you so much. ठीक है, तो मैं अभी उनको थैंक यू। बुलाऊंगी। तो let's पहले वो कनेक्ट नहीं कर पाई थी, तो let's add her now. Okay, we are still waiting for Miss Gul to connect. So Miss Gul runs her own fitness center, and she's also a digital marketer. So she has, I think she has her own she was ventured on this digital marketing, and basically again a very versatile personality. So we're just calling her. Okay, so we're Working. connected. Assalamu alaikum. Islam, can you hear me? Yes, your voice is very clear. How are you? Thank you so Oh, much for joining. most welcome. Thank you for so much for inviting me. Actually, I was quite concerned. It took so long because Yes, I don't I know what. know. So I think with the online webinars, these kind of glitches are always expected. But Yeah, something just like that. so let's have your introduction. Can you tell the audience about yourself? Yeah, sure. I'm Gulfisha, quite known as Miss Gul or Ma'am Gul.
Right now I'm working as a fitness consultant at my own fitness industry and fitness academy. And Very nice. along with that, I am a digital entrepreneur, work as a digital marketer and consultant as well. Mm-hmm. So there's a lot of things. Actually, it's more like as I have 5 fingers, so I just wanted to dip every finger in a different field. So Yes, when I that's the question that I had for you. Okay, the fitness और फिर digital entrepreneurship तो ये कैसे how so how is it so different? yeah, it's such a long journey and quite a long story. And of course, please Start कहाँ से stay लिया with आपने? me. Get in touch with I started my career as a software engineer because Okay. as yes, my profession was software quality assurance engineer. Okay. Then jumped into different things because one thing that I keep telling people is this that I wasn't ever fit for a desk job. I wasn't. Okay. Okay. The kind of person I am a Mm-hmm. sports loving. I've Okay. always loved taking part in sports. What kind of sports? Doesn't really matter. I'm more into playing basketball. I'm more into playing, doing water sports and stuff like that. Then because of the field work that we have Mm-hmm. to spend a lot more hours just staring directly into the computer, into Mm-hmm. your screen. True. So initially posture problems started to appear. You know, Okay. I still remember जो जो willingness होती है ना काम करने की कि Hmm. yes I could do this in just Hmm. 10 hours consecutive 9 to 10 hours but then what Hmm. happened True. सब और आपके जो सिर्फ फील्ड आपने posture अपने लिए का चूज की तो वो तो बहुत ही यानी ऐसी थी कि कंप्यूटर के आगे ही बस बैठना है घंटों के घंटे तो exactly उसके बाद फिर ऑब्वियसली इसमें जब एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट किया था उसके साथ साथ ही अपना कुछ ना कुछ वेंचर स्टार्ट करते रहे क्लोथिंग में आए अपने जो है हम्म, पार्टनर्स के साथ उसको हमने लॉन्च किया उसके बाद मीडिया कंसल्टेंसी में आया एज हीट इनसाइट्स तो उसमें वर्क विद लॉट ऑफ पीपल अपना हमने फाद मुस्तफ़ा के साथ काम किया सनम सईद के साथ काम किया काफ़ी सेलिब्रिटीज वहाँ पे थे तो उसमें जब अंदाजा हुआ कि यस वी आर द वंस who are हम्म, actually making a celebrity ठीक है हम्म, हम उनको वो तमाम चीज़ें उस तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं हम उस तमाम चीज़ें उस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं और खुद अपना पोस्चर अपनी सेहत पे हमारा ख्याल नहीं है खुद अपने खाने पीने पे हमारा ख्याल नहीं है क्यों ओके थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ी नो हाउ हुई उसके बाद आई मेट एन एक्सीडेंट इन 2014 मेरा हम्म, ही बिल्कुल ही मतलब कार्टिलेज प्रॉब्लम इतना सिवियर था उसमें हम्म, कि मुझे डॉक्टर्स ने कह दिया था कि भाई आप अब सारी जिंदगी के लिए यू कैन नॉट ड्राइव एनीमोर ओहो तो अच्छा वही अगेन द इवेंट्स दैट हम्म, एक्चुअली लीड यू टुवर्ड्स समथिंग मेरा हम्म, तकरीबन मैं 2 महीने उनके मेडिसिन लिए अलग अलग जगहों पे दिखाया लेकिन हम्म, हुआ ये कि 1 महीने के अंदर ही जब उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो ताहयात वाली बात हो गई हम्म, तो मैंने हम्म, नहीं इट डजंट वर्क विद मी उन्होंने कहा आपको जो है मतलब इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्ट नहीं करना है आप यू कैन नॉट जॉइन अ जिम ठीक है हम्म, मतलब आप वहाँ के एक समहाउ आप किसी की कंसल्टेंसी के बगैर ये चीज़ नहीं कर सकते तो मैंने कहा ठीक है हम्म, मुझे किसी की कंसल्टेंसी नहीं चाहिए मैं अपनी कंसल्टेंसी पे कर लेती हूँ आई आई जस्ट टुक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन सर्चिंग दीज थिंग्स कि ठीक है आप खुद को आप सेल्फ हीलिंग पे कैसे बिलीव करते हैं क्या चीज़ें करते हैं देन आई रियली डिड सर्टिफिकेशंस in a lot of हम्म, therapies and there are multiple therapies CAM therapies complementary aided medicines जो कि हम्म, पूरी दुनिया में काम कर रही हैं लेकिन सिर्फ यानी आपने पाकिस्तान सेल्फ लर्निंग की हाँ एग्जैक्टली
पर सिर्फ पाकिस्तान में उसका एक्सपोजर नहीं है, तो फिर हम लोगों को पता नहीं चलती ये बात। तो ट्रू। फिर वहां पर ये हुआ कि मैंने तकरीबन आई रिकवर्ड विद इन 3 to 4 months। मैंने अपने आप पे खुद काम किया। आई ज्वाइन अ जिम, फिजियोथेरेपी भी कराई, साथ साथ सारी चीजें मैंने कराई। उसके बाद व्हेन आई ज्वाइन, तो मैंने अपने कोच को बताया कि देखें, डॉक्टर्स हैज डॉक्टर्स हैव प्रोहिबिटेड मी, ठीक है, कि आपको ये नहीं करना है। तो आई एम रेडी साइन द योर लीगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो भी होने वाला है वो खुद होने वाला है मेरे साथ, एंड आई एम रेडी फॉर दैट। तो सही। लिटरली दिस एपिसोड हैपेंड कि मैंने साइन किया और खुद पे काम किया, और विद इन एन ईयर मैं, मतलब मैं भागती भी हूँ, मैं खुद अब जबरदस्त। ट्रेनर भी हूँ, ड्राइविंग भी करती हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ। सिर्फ एक काम मैंने जो आज तक नहीं किया, वो वापस उन डॉक्टर्स के पास गई नहीं, ये बताने के लिए कि ये आपने रिकमेंड किया था, विच आई हैव प्रूव्ड रॉन्ग। तो Such an ये inspiring story, गुल, such an inspiring story। मतलब आपसे वाकई बहुत इंस्पिरेशन मिली है कि you never gave up। आपने अपने यस लिए वो एग्जैक्टली, डेस्टिनी को चूज नहीं कर लिया कि बस बस यही है, बस डॉक्टर ने बोल दिया बस यही है। तो आपने कहा कि नहीं, मैं एग्जैक्टली, तो आई एम गोना प्रूव देम फॉल्स। और एग्जैक्टली, आप उठ के खड़ी हुई और आपने किया खुद से। तो एंड फ्रॉम एग्जैक्टली। देयर यू स्टार्टेड योर ओन फिटनेस एकेडमी। Yeah, exactly. Then I just happen to, as I am a traveler also, and अपना डिजिटल कंटेंट इस पे बिल्ड करती हूँ मैं, तो उसकी वजह से मुझे एक ट्रिप जाना था मलेशिया। वहाँ पे एयर राइड ट्रेनिंग की, इसी तरह के दूसरे स्पोर्ट्स करके थोड़ा सा वहाँ पे नो हाउ ली कि भाई ठीक है, पाकिस्तान में जिस तरह का जिमिंग इंडस्ट्री है, उस तरह की बाहर नहीं। बाहर वहाँ ट्रू। पे तमाम चीज़ों पे प्रॉपर फिलॉसफी पे वर्क करते हैं कि भाई ठीक है, आपको पहले अपने माइंड को रेडी करना है कि भाई आप चीज़ सही। करना चाहते हैं, टू बिल्ड द सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ की वैल्यूज सिखाई जाती है। उनकी प्रैक्टिस, उनकी ट्रेनिंग, उनकी कॉग्निटिव स्किल्स अलग होती है। उसके हम्म। बाद वो ये करवाते हैं कि भाई ठीक है, आप अपना बॉडी को टोन करें, जिस तरह की भी आपको, मतलब उस पर मेहनत करनी है कि भाई आपको एज अ स्पोर्ट्स पर्सन उसको, आपको मसल्स बिल्ड करने हैं या आपको मेंटेन रखना है। उसके बाद फिर आपका पूरा रिलैक्सेशन पे लाता है कि ठीक है, बॉडी की मसाजिंग, ये बॉडी की सर्टेन थेरेपीज क्या रिक्वायर्ड है आपको। तो वहाँ से आई जस्ट टुक इंस्पिरेशन अबाउट साउंड थेरेपी। यहाँ पे आके जो अपना वेंचर स्टार्ट किया था 2019 में, तो द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट वाज द साउंड थेरेपी सेशन, जो यहाँ पे कहीं कोई भी नहीं Embrace करवा the रहा। concept of it. I agree. Never एग्जैक्टली। heard of it. तो उसमें यही था सारा कि ठीक है, आपको सब के अपना टाइम कहीं स्पेंड करना है, या उनको नेटवर्किंग करनी है लोगों से, या दे लाइक टू मेक फ्रेंड्स, बल्कि वो इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि जितनी लाइफ, एक्सपोजर उनको आज तक मिला है, क्या उससे बाहर भी कोई दुनिया exist करती है। एंड दैट्स द बेसिक पॉइंट। सब विमेन, मैंने खुद, मतलब जब मैं इसको स्टार्ट कर चुकी होती काफी अर्से पहले, क्योंकि मैं दूसरी चीजें ऑलरेडी कर रही थी, लेकिन मुझे ये था कि इवन my own friend circle, I'm a graduate from Karachi University, BS इन कंप्यूटर साइंस मैंने वहां से किया, तो मेरे खुद अपने फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा नहीं मिला मुझे जो कहे कि हाँ तुम स्टार्ट करो, हम पीछे खड़े हैं। उस तरह की मुझे कोई मोटिवेशन नहीं मिली मैंने। अच्छा, ये आपने लेकिन बहुत जब इंटरेस्टिंग यस पॉइंट आपने रेज किया कि मोटिवेशन नहीं मिलती है। इस एग्जैक्टली, उल्टा डिस्करेजमेंट, शायद डिस्करेजमेंट के लिए लोग ज्यादा होते हैं, मोटिवेट करने के लिए बहुत कम होते हैं लोग। एग्जैक्टली, और फियर फियर पैदा करने के लिए, चाहे मतलब इट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द जेंडर, मतलब चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, फियर पैदा हम्म। करवाने वाले पहले आ जाता है। तो ट्रू। ये तो बहुत। और उसके बाद फिर, चूंकि अगेन मैंने बताया ना, जो विल पावर मुझे आई वुड से विरसे में भी मिली है, कुछ बिल्ड भी की है, कुछ
मेरे अपने करीब के जो लोग हैं ऐसे जिन्होंने अंदर मुझे उस पे मतलब पुश किया कि हाँ तुम कर सकती हो तो करो इसे। देन इट हैपेंड स्टार्टेड, और जब स्टार्ट हुआ तो फिर इतना तेज चला कि इवन अभी कोविड-19 की सूरत हाल में भी मतलब हम माशाल्लाह से अभी भी बिजनेस डेवलप करने की पोजीशन में। हम अपना प्रोग्राम मैंने अपनी टीम के साथ अब इंटरनेशनल क्लाइंटेल्स इतने बिल्ड किए, उनको उनका कस्टमाइज्ड प्रोग्राम सेल किया। उसकी वजह से वो एक की तरफ जब देखते हैं दूसरी चीज की तरफ आ जाते हैं। आप दूसरा प्रोडक्ट क्रिएट कर सिर्फ आप बस कि कंप्लीटली फिटनेस इंडस्ट्री से वो आगे चीज चलती गई कि भाई फिटनेस फॉर किड्स क्या है, फिटनेस फॉर सर्टेन एज फैक्टर उसमें बहुत मैटर करता है कि भाई सही है कि अगर कोई 50 प्लस है या कोई 60 प्लस है उसको क्या चीज़ करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए। हम कहते हैं हमारे जॉइंट्स प्रॉब्लम्स इतने होते हैं, ठीक है, हम बुढ़ापे में हमारे करीब के जो लोग हैं उनको देख के हमें तकलीफ होती है कि भाई किसी के शोल्डर का प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, किसी कोई कोई भी प्रॉब्लम्स जो भी उनके साथ चल रही हैं उनमें डील करने के लिए जाहिर है हमें भी अपना पार्ट प्ले करना पड़ता है। तो वो तमाम चीज़ों को सही तरीके से उसके लिए हायरिंग की, लोग ढूंढे, और फिर वो चीज़ चूंकि इस वक्त अभी यहाँ पे फिजिकल लोकेशंस तो शट डाउन हुई हुई हैं ऑनलाइन, लेकिन सब चीज़ चल रही है, तो यहाँ से लोकल इंडस्ट्री से निकल के इंटरनेशनल इंडस्ट्री में पहुंच गया। वहां पे कहानी ज़्यादा इंटरेस्ट, और इंशाल्लाह ताला इसको हमें इसी तरीके से आगे ग्रो करने का अभी पूरा फोकस है हमारा कि एक दिन जाहिर है हाल कंट्रोल में आ जाएगी इंशाल्लाह ताला, तो फिर हम वापस जब लोग इंडस्ट्री में इसको बिल्ड करेंगे तो किस तरीके से। राइट नाउ जो अभी होमप्रेन्योरशिप पे मेरा काफ़ी फोकस था, उसमें काफ़ी लोगों को काफ़ी जैसे So, what would you suggest for the females who are watching us कि जो हमारे पास बहुत सी लड़कियां बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन यही होता है कि या घर वाले नहीं अलाउ कर रहे, या उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, भाई स्टूडेंट्स हैं, क्या सेविंग्स होंगी। तो आप उनको क्या एडवाइस देंगी कि वो किस तरह से अपना कोई वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज वेंचर उनके पास हो स्टार्ट सकती हैं? there are indefinite opportunities. If we are just talking about the opportunities, the opportunity तो create की जाती है. It's more about your locus of control. ठीक है, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि हम if you're in a business industry, you want to be a business woman, you want to be a businessman, आपको सबसे पहले जो बेसिक एलिमेंट है ना उसको याद रखना जरूरी है. यू हैव टू बी स्टोइक रादर बी इमोशनल. ठीक है, आप अगर छोटी छोटी चीजों पे छोटे छोटे आपके ड्रॉबैक्स हो गए उस पे आप दिल पकड़ के बैठ गए कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, किस वजह से हो गया, आपको उस वक्त स्टोइक होने की जरूरत है, थोड़ा अपने आप को डिस्टेंट की जरूरत है. यू हैव टू सी द सीरीज ऑफ इवेंट्स. ठीक है, कि पहले आपने इस चीज में ये चीज लर्न की और फिर आप इससे आगे अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं. और ये होता है, ये जरूर होता है. जिसको एक दफा धक्का मिलता है ना वो लकी है, लेकिन जिसको 2 से 3 दफे धक्के मिलते हैं वो लकीएस्ट होता है. तो ये माइंडसेट पहले आपको जहन में रखने की यानी जरूरत फेलियर को है कि एक्सेप्ट करने की एक आपके अंदर हो, आप मादा हो आपके अंदर। टेंडेंसी. हाँ बिल्कुल. और फिर उसके बाद आपको ये याद रखना है कि ठीक है, यस इट डिपेंड्स मोस्टली ऑन द कल्चर या योर सोसाइटी यूर लिविंग इन. ठीक है, आपके आसपास के लोग या जिनसे आप डील करने वाले हैं, अगर आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स ही बनाने हैं तो जाहिर आपको उनकी साइकी के थ्रू बिल्ड करना पड़ेगी प्रोडक्ट कि भाई वी आर गोइंग टू सेल द म्यूजिक टू योर इंटरनेशनल क्लाइंट. क्या आप वहां पे उनको आप स्टोरी सेल कर रहे हैं कि कोई कोरिया में या उस साइड पे बैठे हैं उसको. अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है तो ठीक है, आप घोस्ट राइटर्स के प्रोजेक्ट्स उठाएं. अगर आप लोकल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, अगर आप वुमेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इस वक्त जिस चीज का पोटेंशियल मौजूद है वो है ऑनलाइन सेल. अपनी प्रोडक्ट आप खुद बिल्ड, उसकी इमेज बिल्ड करें,
डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लें, उसके बाद उसकी हाइप क्रिएट करें और फिर उसको वर्ड ऑफ माउथ से इनिशियली वो स्टार्ट होता है, फिर जाहिर है जब आपकी डिजिटल अपीयरेंस होती है सामने तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली फैलती जाती है चीज़। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप ये है कि घर से बाहर निकलने के लिए ना आपको रेडी होना जरूरी है। ठीक है, अभी जिस तरह की सूरत हाल है, जितना खौफ फैला हुआ है बीमारी से ज्यादा विमेन हरासमेंट का, ठीक है, कि तरह की चीजें यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, फला से बचना है, ये करना है, तो प्लीज बी अवेयर। ठीक है, आप विमेन हैं या आप मैन हैं, दोनों बराबर हैसियत रखते हैं अपने रूल्स में भी, ठीक है, अपने ड्रीम्स में भी, अपनी इंस्पिरेशन में भी। आपको सिर्फ अपने ऊपर एक सही तरीके से एक सेल्फ कंट्रोल की पोजीशन में आना है, सारे फियर्स को निकालना है, देन यू आर कंप्लीटली रेडी टू डू एनीथिंग, वेदर इट्स अ बिग एडवेंचर और जस्ट ओपनिंग अप अ न्यू वेंचर। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू। अपॉर्चुनिटी में Very जैसे ही powerful आप words. Thank you so थैंक much. यू, बहुत आपसे सीखने को मिला बिल्कुल. Thank you so थैंक यू much सो for मच। joining us. और श्योर, let's move to Sara for her last any concluding words. उनसे भी यही सवाल पूछेंगे. तो let's see if Sara is there. Thank you. Okay, Sara. Okay, back to you, Sara. आपसे भी वही क्वेश्चन पूछूंगी जो अभी मैंने मिस स्कूल से पूछा कि if you have any, what advice would you basically give to your fellow students, female students जो entrepreneurship के इस path पे आना चाह रही हैं, they want to tread this path, और क्या आप उनको how did you start? आपसे तो हमने स्टोरी पूछ ली कि आपने कैसे स्टार्ट किया, तो आप क्या उनको एडवाइस करेंगी? सबसे पहले जैसे मैंने पहले ही बताया था, अपने ऊपर बिलीव करें कि आप लोग कर सकते हैं। और ये सबसे मेन है कि अगर सोसाइटी को तो हम बाद में प्रूफ करेंगे ना कि हमने करके दिखा लिया, पहले अपने आप को आपको इतना इनकरेज करना है कि आप लोग कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप ही आपकी ये है, सेल्फ असेसमेंट करें अपनी कि आप लोग कर सकते हैं और मुश्किल नहीं है। और फिर जब आप लोग करना स्टार्ट करेंगे किसी भी चीज़ में, आप आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिकली आएंगे, उसके अंदर करना स्टार्ट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप लोग को खुद लगेगा कि हाँ ये आसान था, हम लोग खुद ही डर रहे थे। तो ये चीज़ मैं बोलना चाहूंगी, कभी भी मत घबराएं और बिल्कुल भी हेजिटेट फील ना करें, अपने ऊपर बिलीव रखें कि आप लोग कर सकते हैं, तो श्योरली यू गोना अचीव इट। That's मैं ये very एडवाइस दूंगी। again very powerful. So basically पहला स्टेप है कि अपने आप में यकीन रखना, ठीक है, फिर ही यस हम, मैम। और and then as you said and as Gul said कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हमारे अंदर एक होनी चाहिए कि we need to get out of the comfort zone. तो let's see कि मिस सामिया is still there, तो सामिया को भी let's take her concluding remarks. थैंक यू। So thank you so much, Sarah. It was very wonderful to have you. मैम। So I think Miss Samia has, she's disconnected. So our time is also up. If again any concluding, uh, any question for anybody, if you want to ask any question to one of the our guests, so I'm going through your comments. Okay, so थोड़ा सा हमारे स्टार्ट होने में टाइम लग गया था, जिसकी वजह से हमारा यू नो उसमें थोड़े से ब्रेसेस हो गए, बट अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन, आपके you were part of this webinar, and for giving us the encouragement. This event was again
This was organized by Muhammad Ali Jinnah University in collaboration with Oriflame. So thank you so much for watching. And thank you once again. Thank you, Sarah. Thank you, Samia Hamid. Thank you, Gul. Again, very wonderful and ladies जिनसे हमें आज I hope के बहुत सीखने को मिला. We had a lot of key takeaways from this. So we will be having another, we'll try to have more events like these for you. So thank you so much and take care.